Welcome to prep classes. Today we'll start with ICT and we'll divide this chapter into 4 parts. So this is the first part. Let us begin. So let us begin with the first chapter of ICT, that is Information and Communication Technology. We'll be studying about what is information and communication technology, how is it and why is it used in education, what is the impact after using this in education. So we'll be discussing this in detail in this chapter. So let us begin. Before we proceed, we should know what is education, we should know what is technology, and then what is educational technology. What is education? Education is the process of learning and gaining knowledge, skills, values, and attitudes. We all know that education is we go to school, we go to colleges, we gain knowledge and skill. Then, what is the purpose of it? It helps people to understand the world and develop abilities and become capable member of the society. What are the methods of gaining education? It includes schooling, informal learning, and self study. And what are the types? It can be academic or practical. This is something we all are aware of. Then comes technology. Technology refers to tools and machines that help us to do tasks more easily or efficiently. For example, like we use computers, we use calculators, we use mobile phones. So these are all technology which makes our work more easier. Examples are given: computer, smartphone, machines are all types of technology. And what are the purpose? Its purpose is to make life easier, faster, and more productive. Then comes educational technology. We know what is education, we know what is technology. Now, what is educational technology? It is use of technology to enhance learning and teaching. So, in order to improve and enhance the learning and teaching process, we use educational technology. It includes computers, tablets, educational software, online courses, and interactive whiteboards. We have started using whiteboards in almost all the schools in India. Nowadays, we use projectors and different kinds of digital boards. What is the purpose? The purpose is to help teachers deliver lessons more effectively and allow students to learn in new ways. और इसका बेनिफिट क्या है? बच्चों को एंगेज रखना क्लास में, वास्ट रिसोर्सेस एक्सेस होना and personalized learning experience. Now, how they work together? Education and technology, how they work together. Education benefits from technology by using tools to make learning more engaging and accessible. Educational technology is specific application of technology focused on improving the learning experience and educational outcome. So, education is about learning and growth. Technology is about tools that help us to achieve task. और एक साथ अगर हम देखें, education technology combines both to make learning better. Now, need for educational technology. There are various needs which are given here. The first is provides access to experts. We have access to experts. We can show videos for a particular topic in a book जिसमें एक्सपर्ट ने कुछ बताया, तो दैट विल बी ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. प्रमोट डिजिटल लिटरेसी. डिजिटल लिटरेसी बढ़ता है. एक टाइम था जब लोगों को कंप्यूटर्स एंड डिजिटल बोर्ड्स इतने अच्छे से यूज़ करना नहीं आता था, ना बच्चों को एक्सेस करना आता था, ना टीचर्स को यूज़ करना आता था. बट विद दिस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इट हैज़ प्रमोटेड डिजिटल लिटरेसी. Encourages lifelong learning. So it is a lifelong learning. Whenever and wherever you want to understand and learn something, you can straight away take out your smartphones, you can straight away take out your laptops or computers, and you can find out the answer. Support special needs. Special needs as in, there are few topics in the books which does not cover everything about that particular topic. So in case आपको उसके बारे में और ज़्यादा जानना है, ज़्यादा जानकारी चाहिए, you can go for your technology. फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग. ये क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ाता है, बच्चों का थिंकिंग स्किल्स भी बढ़ाता है, बिकॉज विजुअल करके पढ़ना और बुक में पढ़ना देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. व्हेन स्टूडेंट्स विजुअलाइज इन द वाइट बोर्ड, व्हेन स्टूडेंट विजुअलाइज इन द वीडियो, दे अंडरस्टैंड मोर एंड उनका क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो बढ़ता है. enables innovative teaching method. Of course we all know ये एक innovative way of teaching है. पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक था, अभी डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, प्रोजेक्टर्स हैं. सो इट इज़ एन इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग. इम्प्रूव्स इंगेजमेंट.
बच्चों का पढ़ाई के साथ एंगेजमेंट बहुत देर तक रहता है। सपोर्ट्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, दूसरे दूसरे टाइप के, कुछ बच्चों को रीड करने से याद होता है, कुछ बच्चों को वीडियो देखने से याद होता है, तो ये अलग अलग तरीके के लर्निंग स्टाइल्स भी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है, आप तुरंत क्वेश्चन पूछते हो, आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। सो फीडबैक जो होता है इट इज़ इमीडिएट। पहले क्या होता था, स्कूल में मैम कुछ समझाती थी, हम घर पे पढ़ते थे, हमें नहीं आता था तो हम वेट करते थे नेक्स्ट डे का, लेकिन अभी वैसा नहीं है। एनकरेजेस कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब आप चाहें तो घर बैठे ही किसी और के साथ भी लिंक हो सकते हैं, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, ऑनलाइन एकेडमीज़ कितने सारे खुल गए हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फैसिलिटेट्स रिमोट लर्निंग, रिमोट लर्निंग एज इन पूरा बेसिक लर्निंग में वो पूरी तरह से हेल्प करता है। सपोर्ट्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग, आपको पर्सनली भी पढ़ना है, आपको ग्रुप में नहीं पढ़ना, आपको पर्सनली पढ़ना है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग भी कर सकते हैं बाय यूजिंग योर स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स। प्रोवाइड्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में, आराम से यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एंड फाइनली एनहांसेस लर्निंग एक्सपीरियंस, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है वो और ज़्यादा उभर के आता है, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू हैव सो मच ऑफ यू गेट द फीडबैक सो सून कि आपके पढ़ने का, आपका लर्न करने का सब कुछ जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा एनहांस होके आता है। सो दीज वर 14 नीड फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। व्हाट आर द नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहें तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं या फिर यहाँ से पॉइंट्स देख के समझ सकते हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल बिकॉज इट एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंस, provides access to resources, supports personalized and collaborative learning, and prepares students for future. It enhances both teaching and learning. It does not helps only in teaching, but it also enhances learning. So both are included by making education more flexible, engaging, and effective. Then comes aims and objectives of educational technology. एम क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मेन एम क्या है? फर्स्ट इज मेकिंग लर्निंग फन. यूज़ इंटरैक्टिव टूल्स लाइक गेम्स एंड वीडियोज़ टू मेक एजुकेशन मोर इन्जॉयबल. एजुकेशन को और फन बनाना और इन्जॉयबल बनाना. एंगेज स्टूडेंट्स एक्टिवली. ऑफकोर्स व्हेन यू शो वीडियोज़ एंड पिक्चर्स स्टूडेंट्स एंगेज होके रहते हैं. प्रोवाइड एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग. कहीं पे भी लर्निंग प्रोवाइड करना है, कभी भी प्रोवाइड करना है, आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं. सपोर्ट टीचर इफेक्टिवली. ऑफकोर्स टीचर्स को वो हेल्प करता है. कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंस. अडेप्ट लेसन्स टू फिट द इंडिविजुअल नीड्स एंड लर्निंग स्पीड ऑफ ईच स्टूडेंट. क्लास में बोर्ड पे लिख देना और डिजिटली पढ़ना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इट एनहांसेस द लर्निंग प्रोसेस एंड इट ऑल्सो फिट्स द इंडिविजुअल नीड्स कि किस बच्चे का स्पीड कैसा है पढ़ने का, उसके हिसाब से दे कैन यूज़ द टूल. एनकरेज टीम वर्क. प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ग्रुप प्रोजेक्ट्स. ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी आजकल आराम से पॉसिबल होते हैं बिकॉज ऑफ फोन्स एंड लैपटॉप्स, सो इट हेल्प्स इन एनकरेजिंग टीम वर्क. इम्प्रूव कम्युनिकेशन. एनहांस द वे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर. कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है क्योंकि बच्चे जब पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो उनके अंदर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं. दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद द टीचर. ऑफर क्विक फीडबैक, ये भी हमने डिस्कस किया था नीड्स में. स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग भी एनहांस करता है, ये उसका एक एम है. एड्रेसेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल. डिफरेंट लर्निंग स्टाइल में क्या आ जाता है? सच एज वीडियो, टेक्स्ट एंड इंटरैक्टिव टूल्स टू केटर टू डिफरेंट प्रेफरेंसेस. किसका प्रेफरेंस कैसा है उसके हिसाब से लर्निंग स्टाइल प्रोवाइड करता है. एनेबल लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम. बियॉन्ड द क्लासरूम एज इन, लाइक आई सेड, not all the topics are covered in the books, so students who are keen to know more, they can go for technology. Promote continuous learning. वो continuous learning में help करता है, वो भी उसका एक aim है कि मैं बच्चों को continuous learning में help करूँ. Update learning resources regularly.
कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, जिनमें कि या फिर पॉलिटिक्स, जिसमें कि अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपडेट कौन करता है हमें? टेक्नोलॉजी। सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जितने भी बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उसको आराम से हम लोग कंप्यूटर की मदद से ख़त्म कर लेते हैं। असिस्ट स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, जिनको स्पेशल नीड्स हैं, प्रोवाइड टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफिकल्टीज। एनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, बच्चे खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इंस्पायर इनोवेशन इन टीचिंग, टीचिंग में भी हम इनोवेटिव वेज यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को और ज़्यादा क्लास में जिस तरीके से वो क्लास में और ज़्यादा एंगेज रहें। डेवलप डिजिटल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स सिर्फ टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स का भी ग्रो करता है। कनेक्ट लर्निंग टू रियल लाइफ, शो हाउ क्लासरूम लर्निंग अप्लाइज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, जिसको हम लोग केस स्टडी भी बोल सकते हैं। उस तरीके से भी हम लोग बच्चों को रियल लाइफ एजुकेशन दे सकते हैं। एक्सपैंड एक्सेस टू एजुकेशन, प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स इन रिमोट और अनडिजर्व्ड एरियाज, रिमोट एरियाज में भी हम लोग एक्सेस दे सकते हैं। ये थे एम्स। नाउ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आएगा क्रिएट इंटरैक्टिव लेसन्स, प्रोवाइड ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और टीचर्स को टेक्नोलॉजी यूज़ करने में हेल्प करना। व्हाट इज़ LMS? LMS इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ यूज सॉफ्टवेयर टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कोर्स कंटेंट, असाइनमेंट एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस। जैसे एक्सेल शीट आ जाता है या फिर वर्ड फाइल आ जाता है, इन सब में हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू किया। पहले पेन एंड पेपर में होता था, तो इसमें आजकल फॉर्मूला डालते हैं और फटाफट सब कुछ सेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। डिज़ाइन एजुकेशनल ऐप्स, एजुकेशनल ऐप्स तो कितने सारे निकल गए हैं, जैसे हमारा खुद का एक है प्रेप क्लासेस एकेडमी। इस बार इसका भी एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड करके कितने सारे रेलवेज़ और पता नहीं जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव्स हैं उनके क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चन बैंक, सब कुछ, सिर्फ प्रेप क्लासेस नहीं, कितने सारे एजुकेशनल ऐप्स निकल गए हैं जिसको लोग यूज़ करते हैं। ऑफर वर्चुअल फील्ड ट्रिप, यूज़ टेक्नोलॉजी टू टेक स्टूडेंट्स ऑन वर्चुअल टूर। अब हर जगह तो टूर पे ले नहीं सकते हैं, तो म्यूज़ियम्स दिखाना हो या फिर कोई एक बहुत ही पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाने हो, तो हम लोग उनको वो भी वीडियोज़ दिखा सकते हैं। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया इन लेसन्स, वीडियोज़, एनिमेशन, ऑडियो क्लिप्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब यूज़ कर सकते हैं। कंडक्ट डिजिटल असेसमेंट, यूज़ ऑनलाइन क्विजेज एंड टेस्ट टू इवेलुएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस, तो उससे उनका प्रोग्रेस भी जान सकते हैं। असेसमेंट हमारे कितने सारे, जैसे डिजिटल बोर्ड्स में कितने इनबिल्ट असेसमेंट्स भी रहते हैं, कितने कंपनीज इन असेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम बच्चों का लर्निंग आउटकम क्या है वो पता कर सकते हैं। फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव टूल्स, ये भी हमने डिस्कस किया है। सपोर्ट रिमोट एक्सेस टू क्लासेस। नेक्स्ट है ट्रैक एंड एनालाइज स्टूडेंट्स डाटा, यूज़ टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इससे हम लोग जैसे उनके जितने भी असेसमेंट में मार्क्स आते हैं उसको हम लोग एक्सेल शीट में जॉट डाउन करके रख सकते हैं और ग्रेजुअली वी कैन ट्रैक डाउन एंड एनालाइज स्टूडेंट्स डाटा। Create interactive simulations, develop simulations that allow students to explore and experiment with complex concept. किस तरीके से complex questions को solve करना है. They can use educational technology to find out answers in simpler words. Use adaptive learning technologies. Implement system that adjust the difficulty of task based on individual student performance. तो हमें लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ भी वही यूज़ करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, कि हमें ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करना है विच इज़ यूज़र फ्रेंडली। प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल लाइब्रेरी, अब डिजिटल लाइब्रेरी में कितने सारे बुक्स हमें ऑनलाइन हमारे प्ले स्टोर में मिल जाते हैं फ्री में, उसमें बुक्स, रिसर्च पेपर्स, एजुकेशनल रिसोर्सेज, कितना कुछ मिलता है, तो दैट इज़ एक्सेस टू डिजिटल लाइब्रेरी। इनकॉर्पोरेट गेम बेस्ड लर्निंग, जिसको प्ले वे मेथड बोलते हैं। प्ले वे मेथड यूज़ करके हम बच्चों को क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इंगेज रख सकते हैं। ऑफर ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विसेज, जैसे हमारा कोविड आ गया था उस टाइम पे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए थे, तो वो वाली फैसिलिटी भी हमको मिल जाती है। देन कम्स डेवलप असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, क्रिएट टूल्स टू हेल्प स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स सच एज टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर भी AI में आ गया है आजकल, ऑटोमेटिक रीडेबल,
तो उससे भी बच्चों को बहुत हेल्प होता है फॉर प्रोनाउंसिएशन, किस तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस करना है और समझना है. यूटिलाइज लर्निंग एनालिटिक्स, एनालाइज डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड स्टूडेंट्स आउटकम. एनालाइज डाटा कलेक्टेड, जो डाटा कलेक्ट किया है फ्रॉम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड स्टूडेंट आउटकम, किस तरीके से वो हेल्प करता है टीचर्स की स्ट्रैटेजी में भी और स्टूडेंट्स के आउटकम में भी. एंड लास्ट है इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू डेली लेसन्स, सीमलेसली इंक्लूड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे क्लासरूम एक्टिविटी टू एनहांस लर्निंग. तो टीचर्स को टेक्नोलॉजी क्योंकि अभी यूज़ होता है स्कूल में, तो उसका उनको भरपूर यूज़ करना चाहिए क्लास में, ताकि बच्चे और ज़्यादा एंगेज रहें और पार्टिसिपेट करें क्लास में. So here we come to the end of first part of ICT of chapter 1. Thank you for following prep classes.